Okay, see here, guys. We have done almost everything in the chapter coordination compounds. The only topic that is remaining is isomers. Please write the heading isomers. Now, what are isomers? Isomers are compounds with same molecular formula. पूरा लिख देते हैं molecular formula but different chemical form. Different chemical form. Now, there are two types of isomers that we have to learn. एक isomers है structural isomers and the other one is stereoisomers. So there are two types of isomers that we have to learn about. We have structural isomers, and then we have stereoisomers. So basic definition of the structural isomer is that the compounds with same molecular formula but differ in, where would they differ? Differ in the structure, or you can say networking of atoms. So a very simple case of just understanding it very theoretically is that अगर आपके पास A bonded to B है and B is bonded to C, है ना? And in the other case, what you have, B is bonded to A and A is bonded to C. Now, in both of these cases, you can see that number of the atoms are same, A, B, and C. The compound that we are seeing here, it is made by A, B, and C. But the bonding or the networking is different. Can all of you see that? Yes or no, please tell me, guys. नेटवर्क जो है ना, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, यहाँ पे बी से ए एंड ए से सी. देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन ए एंड सी इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, बट सेकंड स्ट्रक्चर में ए और सी के बीच में बॉन्ड है. ठीक है, दैट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी देयर इन द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, although it is not an example exactly, but still. Now, what about stereoisomers? So, stereoisomers PC, it differs in the arrangement of atoms in space. नेटवर्किंग सही है, बस एटम का अरेंजमेंट क्या है वो डिफरेंट है यहाँ पे. ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. एक आपका है नंबर 1, प्लीज राइट, आयोनाइजेशन आइसोमर. Number 2 is hydrate isomer. Number 3 is coordination isomer. And the number 4 is linkage isomer. Number 4 is linkage isomers. Regarding stereoisomers, there are only 2 types. One is known as geometrical isomer, and the other one is known as optical isomer. Now, we will look at the structural isomers first of all, and in structural isomers, you will write the heading. I will tell you about the topic, structural isomers. स्ट्रक्चरल आइसोमर में सबसे पहला हेडिंग डालिएगा आयोनाइजेशन आइसोमर.
ये लोग अभी बहुत अभी अभी आए बिल्कुल, वो यहाँ से लिखना चालू करें प्लीज। रेज योर हैंड वंस यू डन राइटिंग। राइट इट क्विकली, रेज योर हैंड वंस यू डन। प्लीज रेज योर हैंड वंस यू डन गाइस, इतना टाइम लगा चाहिए? व्हाट यू गाइस आर राइटिंग स्टिल? रेज योर हैंड वंस यू डन। वेटिंग फॉर Alisa and Safia. Just waiting for Safia now. Safia हो गया, फाइन। चलिए देखिए, ध्यान सुनिएगा जरा। For all the structural isomers that we are going to see, for all the structural isomers that we are going to see, इसमें हम दो चीज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिखने की आप लोगों को जरूरत 1 सेकंड की जरूरत समझेंगे आप। So in structural isomers, I will tell you guys two things regarding each one of them, their definition and how to identify। ठीक है, दोनों में फर्क है। फाइन। How you are going to identify as ionization isomer or hydrate isomer or coordination or linkage isomer, it is different than the definition. Obviously there is some kind of link between the definition and the identification, but आपको identification पे ज्यादा ध्यान देना है, because वो application based सवाल आ जाएगा। अगर आपको सीधे सीधे पूछ लिया ionization isomer, so it is very easy to define, बहुत ही आसान है इसका definition। आपको ज्यादा ध्यान किसमें देना है, how to identify कि कहाँ पे ionization isomer होगा और कहाँ नहीं होगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन क्या होगा। सो इट्स वेरी इजी। द इनिशियल पार्ट फॉर एवरी आइसोमर इज द सेम, दैट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव्स डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन। ये क्या हो गया, ये हो गया डिफाइन करने का तरीका, दैट्स इट, डिफाइन करने। अब आपकी बात आती है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच इज गिवन टू यू वेदर इट इज अ आयनाइजेशन आइसोमर और नॉट। देन फॉर दैट प्लीज सी, कंटेन्स, क्या रहेगा, कंटेन्स anionic ligand and anionic काउंटर आयन। काउंटर आयन अनायनिक होगा, यानी कि लिगेंड जब हम अनायनिक बोल रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वन लिगेंड शुड बी अनायनिक, और काउंटर आयन कैसा होना चाहिए, अनायनिक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक आपके पास कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, नॉट मेकिंग एनी कंपाउंड। इट हैज कोबाल्ट एटम, उसके पास होते हैं 5 NH3, 5 अमोनिया, इट हैज 1 क्लोरीन एंड इट हैज 1 SO4। अब देखिए, इसी स्ट्रक्चर से आपके पास यू कैन मेक 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। सी रेज, and these compounds they will only differ in what, only differ in the ions। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। हॉरिजॉन्टल, एक केस में क्या होगा, यू विल हैव कोबाल्ट
यू विल हैव दी NH3 ऑल NH3 होल 5 और क्लोरीन रहेगा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स और बाहर रहेगा SO4 and in one of the compound that we can have is cobalt NH3 whole 5. अब यहां रहेगा SO4 but the chlorine ion will be outside. Now from here you can see that what are the ions that is given by these two. यहाँ पे ये कौन कौन से आयन देगा? If I am adding this into the solution, ये आपको देगा cobalt NH3 whole 5 chlorine SO4 2 नेगेटिव में 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव होगा. सो दीज आर द आयन SO4 2 negative. So these are the two ions that I am getting when I am adding this particular compound in the solution. If I add this compound, then what I am getting? Cobalt NH3 whole 5 SO4 chloride ion, it has 1 negative charge. तो यहाँ पे आपके पास एक positive charge होगा and chlorine will be having 1 negative charge. So can you see that there is a difference? इन दोनों का molecular formula same होगा. एक cobalt 5 NH3 एक chlorine एक sulfate. एक कोबाल्ट 5 NH3 एक क्लोरीन और एक सल्फेट बट द आयंस दैट दे आर गिविंग इन द सॉल्यूशन आर डिफरेंट. कैन यू गाइस सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. अरे हाँ या ना तो बोल दे भाई. यस सर. राइट. एंड वी विल से दैट दीज टू आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. और ये दोनों कैसे आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स तो हैं. कैसे आइसोमर्स हैं? दे आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. अगर आपको ये कंपाउंड दिखा दे, बोले क्या आयनाइजेशन इस आइसोमर देगा, देन आपको क्या देखना है? काउंटर आयन एनायनिक है. यस सर. इज देयर एनी एनायनिक लिगेंड? यस सर. दैट मींस इट इज गोइंग टू गिव आयनाइजेशन आइसोमर. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. कैसे पहचानना है? यस सर. ठीक है. चलिए अब इसके बाद एक और चीज है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए. ठीक है. देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि आपके पास ये जो है ना, मतलब आपको एक कंपाउंड दिया जिसका फॉर्मूला ये है. अब ये तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ना. नाउ दिस, ये जो आपके पास सैंपल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है. अब सैंपल आपके पास तो एक ही है, ए सैंपल है. अब ये ए सैंपल इसका है या इसका है? समझ में आ रही है? बिकॉज दो आइसोमर हो सकते हैं ना. You have got the molecular formula. What does the molecular formula say? It says that we have 1 cobalt, we have 5 nitrogen, we have 15 hydrogen. I hope you can see 15 hydrogen. दिख रहे? बताइए जरा. कैन यू सी 5 नाइट्रोजन 15 हाइड्रोजन? से सोनो पिक्सल मिला. अरे भाई हाँ या ना तो बोले. नहीं समझ में आ रहा किसी को. देखिए भाई, देखिए NH3 बोल रहे हैं ना. 5 NH3 है तो 5 दिया 15 हो गया ना. 15 नाइट्रोजन. इन टोटल 15 हाइड्रोजन विल बी देयर. कैन यू सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. यस सर. यस सर. है ना? अब दिखा? ठीक है. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इट ओनली टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. How many cobalt? 1. How many nitrogen? 5. How many hydrogen? 15. How many chlorine? 1. How many sulfur? 1. How many oxygen? 4. Fine. This is the molecular formula. But what compound are we having? Are we having the sulfate wala or chloride wala? How will we identify? Then for that we have a test. And this is there in the NCERT. हम कुछ आगे का नहीं पढ़ा रहे. भले ही आप लोग अगर थ्योरी पढ़ते हो तो नहीं दिखे आपको, because it is there in the question answers. थ्योरी में कुछ एक भी रिएक्शन देखना नहीं होगा आपको. But there is a reaction in this particular chapter. ध्यान दीजिएगा जरा. If you have sulfate, ठीक है, हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख के बता दें. देखिए जब आपके पास सल्फेट है ना, then what would happen if you react this with AgNO3. मान लीजिए इसको आपने पहले AgNO3 से रिएक्ट किया, AgNO3. ठीक है. तो it will give you no white PPT, सल्फेट वाला. बट इफ यू रिएक्ट दिस विथ ना, क्लोराइड वाले को आपने रिएक्ट कराया तो हमने स्टार्टिंग की क्लास में देखा था दैट AgNO3 it reacts with the chlorine that is outside the coordination sphere and it makes AgCl which is white PPT. अब ये सिर्फ क्लोराइड के लिए ही सीमित किया, लिमिटेड नहीं है. इट इज नॉट ओनली फॉर क्लोराइड बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर AgBr. राइट. इफ यू हैव ब्रोमाइड ना, देन इट विल मेक AgBr. Now, how will you test whether it is sulfate or not? सल्फेट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? सल्फेट के लिए क्या करते हैं? सल्फेट के लिए करते हैं एक टेस्ट जिसको बोलते हैं BaSO4 डालना, सॉरी BaCl2 डालना और BaSO4 बनता है. बेरियम क्लोराइड आप डालिए एंड फॉर दिस यू विल गेट व्हाइट PPT बिकॉज ऑफ व्हाट? BaSO4 विल बी फॉर्म्ड बिकॉज वी हैव सल्फेट आयन
and this is will be white PPT. But if you react the chloride one with BaCl2, it will give no white PPT and reaction will not occur. No white PPT. Does this make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना प्लीज बोल दे. Yes, sir. Yes, sir. आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड. प्लीज राइट दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस यू. Now both these things are important. इसमें तीन चीज है. They can ask you what is ionization, I think. They can ask you to identify whether this compound will give ionization isomer or not. They can give you two compounds and they ask whether what type of isomerism is shown here. They will give you a compound and they will ask you how will you identify whether it is a chloride or a sulfate. Whether the counter ion is chloride or it is a sulfate. तो सल्फेट है तो BaCl2 से ऐड करने पे क्या होगा? व्हाइट पीपीटी देगा. अगर क्लोराइड है तो AgNO3 पे व्हाइट पीपीटी देगा. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन. रेज योर हैंड वंस यू डन. Aliza is done. Waiting for Deborah, Safia, Fadil. Aliza, you have joined from two different accounts. Sir, I just joined from my laptop. I'm gonna. Achha. Fine, not a problem. Waiting for Safia now. Okay, everyone is done. Now, moving on. Second, which is hydrate isomer. इसका एक और नाम है सॉल्वेट आइसोमर. सॉल्वेट आइसोमर, ठीक है. सो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि डिफर कहाँ कर रहा है. सो दिस इज द डेफिनेशन पार्ट, है ना. सो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन the presence of H2O, yes, solvent, molecule, inside coordination sphere, inside coordination sphere as ligand or merely as water of crystallization. Merely as water of crystallization. क्या मतलब इस चीज का? Whether water is, I hope you, all of you know this term water of crystallization. Yes sir or no sir? Tell me guys. Heard of this word, right? Water of crystallization. आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा. CuSO4 जो होता है, it is blue in color, but इसको अगर आप हीट कर दें तो ये white हो जाता है because इसके पास water of crystallization होता है. And when water of crystallization is removed, it does not have the blue color. भले ही आपने CuSO4 का नहीं याद हो आपको, but water of crystallization, you guys have heard this word ना? Yes or no? नहीं पढ़ा किसी ने क्या? फादिल, अलीजा, डेबोरा एंड सफिया, है ना. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आपको बस ये देखना वाटर कैसे प्रेजेंट है, एज अ लिगेंड प्रेजेंट है या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. अब देखिए आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है. H2O in and out. So if you have been given two compounds जिसमें एक में पानी अंदर और एक में पानी बाहर है, ध्यान दीजिए what I'm saying.
एक में पानी अंदर है और एक में पानी बाहर है, then you will say okay fine, इन दोनों के बीच में these two are what hydrate isomers of each other. But if they are asking you only, if they have given you only one compound and asking you that what are the possible isomers that we can get from this compound, और उसमें आपको देखना है कि लिगेंड में वाटर है या नहीं है, ठीक है। लिगेंड में अगर पानी आ गया, पानी कहीं भी आ गया ना कंपाउंड में, तो वो हाइड्रेट आइसोमर देगा। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, you have chromium, it has 6 H2O molecules and 3 chlorides. अब for this particular molecular formula we can have 3 different isomers. कौन कौन से देखिए गाइस, एक आपका आइसोमर बनेगा that you have chromium and all the H2O are acting as what, acting as ligand, और बाकी 3 क्लोराइड है काउंटर आयन। The other isomer that we can form is we have chromium, 5 white water molecules, 5 water molecules are acting as ligand, one of the chlorine is acting as ligand, the 2 chlorine are acting as counter ion, और एक H2O is acting as water of crystallization. Another thing that we can do is, the last case that we can have is chromium, there is H2O whole 4, 2 chloride ions are inside, 1 chloride ion is outside, and there are 2 H2O molecules acting as water of crystallization. ठीक है। So these are the different isomers, hydrate isomers. ये तीनों एक दूसरे के क्या है, hydrate isomers है। Now please see, don't write. Please see. अब इन तीनों के लिए how will you test? देखिए, आपको एक कंपाउंड दे दिया गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अब तीनों में से कौन सा है आपके पास, इसके लिए क्या कीजिए आप, यू विल रिएक्ट दिस विद AgNO3 and if it gives 3 moles of AgCl, that means it is the first compound and 0 H2O, right? And 0 H2O. This will reaction with the same thing, AgNO3. This will give 2 moles of AgCl and 0 H2O. And here if you see AgNO3, it will give you 1 mole of AgCl and 2 H2O. ठीक है, that's it. चलिए इसको लिख लीजिए जरा, हाइड्रेट और सॉलिड आइसोमर्स। Raise your hand once you're done. Waiting for Alisa and Deborah. ठीक है, अब हम ना आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना, कंफ्यूजन आपको बाद में ना हो, आप थोड़ा अगर ध्यान से देखें, then all of these 3 are going to give you different ions. है ना बात सही? ध्यान देके देखिए जरा, if you look at the square bracket part of each different, so obviously they are going to give you different ions. Make sense, yes or no? अरे भाई ये एक आयन बन जाएगा ना, this will be one ion with 3 negative charge. Yes, This will be sir. another ion, right? So if you are going to look at all the subsequent isomers,
they are also ionization isomers, but they are specific type of ionization isomers, जिसमें किसकी वजह से हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स. ठीक है. सो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे तो डिफरेंट आयंस आ रहा है, बट डिफरेंट आयन किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल. सो यू विल से दैट दिस इज हाइड्रेट आइसोमर. यू विल से आयनाइजेशन आइसोमर ओनली इफ व्हाट आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं. मतलब आयंस क्या है, अनायनिक लिगेंड है और अनायनिक काउंटर आयन है, बस उस वजह से. ठीक है. वाटर की प्रेजेंस से अगर कुछ हो रहा है, दैट विल बी हाइड्रेट आइसोमर्स, इवन दो it can be said that this is, technically speaking, it is also an ionization isomer. Fine, these three compounds. Now, right next, coordination isomer. Third one is coordination isomer. So what do they differ in? Please write differs in distribution of ligands. The different distribution of ligands. ठीक है. Now this is the writing part जो आप लिखिएगा. आइडेंटिफाई करने की जब बात आएगी, when you will have to identify, then what you will identify? See, it occurs in it occurs in complexes having both anion and cation as complex ion. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट NH3 होल 6 और क्रोमियम CN होल 6. ठीक है. Now this one and the other compound chromium NH3 whole 6, cobalt CN whole 6. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कोबाल्ट के पास NH3 है, यहाँ पे कोबाल्ट के पास CN, क्रोमियम के पास CN है, यहाँ पे क्रोमियम के पास NH3 है. राइट. बट एवरीथिंग एल्स इज सेम, द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह दोनों सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है. सो दिस अकर्स ओनली व्हेन यू हैव दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन. तो जब कॉम्प्लेक्स आयन ही कैटायन हो और कॉम्प्लेक्स आयन ही एनायन हो, देन यू आर गोइंग टू गेट कोऑर्डिनेशन आइसोमर. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. याद रहेगा? हाँ Yes, ना, sir. कुछ तो बोले भाई, याद रहेगा? बट अगर Yes, sir. सफिया सफिया डेबोरा एंड फादर, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. सफिया एंड डेबोरा, व्हाट अबाउट यू गर्ल्स? Yes. गॉट इट? यस और नो प्लीज? ओके फाइन. सफिया एंड डेबोरा आपको क्लास में नहीं है क्या? यस और नो? यस. ओके. व्हाट अबाउट यू सफिया? Yes, sir. आज आप फिर, आप घर पे हैं बाहर है सफिया? I'm at home. होम ओनली ना? Yes, sir. ठीक है. राइट. नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमर. लिंकेज आइसोमर. So what do they differ in? Please write with me. Differs in the point of attachment अच्छा, okay, fine, Apura. Point of attachment of ligand to central metal atom. ठीक है. You identify, identification के लिए occurs only when ambidentate ligand is present
इन अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखिए एम्बिएंट इंटेट लिगेंड का मतलब, फॉर एग्जांपल यू हैव NO2। NO2 का अगर फॉर्मूला देखिए, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। सेम थिंग इज विद ONO, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, बट दी कोऑर्डिनेशन इज हैपनिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम। वही अगर हम CN की बात करें तो कोऑर्डिनेशन इज हैपनिंग थ्रू कार्बन एटम। और अगर हम आइसो साइनाइड की बात करें तो कार्बन इज सॉरी अटैचमेंट इज विद द नाइट्रोजन एटम। एंड सिमिलरली वी हैव SCN, सो इट इज हैपनिंग बाय सल्फर। और जब हम NCS की बात करते हैं, इट इज हैपनिंग विथ नाइट्रोजन। तो इनमें से अगर कोई भी हो ना, इफ दिस कम दीज और दीज ligands are present, तो हम बोलेंगे हाँ, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कैन शो लिंकेज आइसो। write this down, raise your hand once you're done. Please give me a second. I am looking for a question right now. चार सवाल है, प्लीज कीजिए। ये देखिए आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन कोई काम नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या काम देगी आपको, आइडेंटिफिकेशन आपको करने आता है। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, विल गिव यू 3 more minutes, send the answers quickly.
Send your answers in the chat, okay? In the chat, you can send the answers, Zoom chat. Guys, time is up. Can you please send the answer on the Zoom chat? I hope it is not difficult, guys. Father, are you done with anyone? Any one of the questions, Father? Yes, Father, yes or no? I think it's an easy question, ना? Yes or no तो बोल सकते हैं? Yes, you are done with few. Please send me answers then. What about you guys, Deborah? Are you done with any one of them? Are you done with any of the question, Deborah? Safia, you tell me. आपसे हुआ एक भी सवाल? Yes, Safia. हाँ, लीजा करेक्ट. सफिया, एम आई ऑडिबल? अरे यार, हाँ ठीक है, हाँ मूव, हाँ जी सही है. डेबोरा, सेकंड वन, हाँ करेक्ट, वेरी गुड. अरे अभी आगे कर रहे हैं, इतना टाइम, इतना बोलने के बाद, नाम लेने के बाद करते हैं, बड़े अफसोस की बात है यार. मतलब हमने जब बोल दिया 3 मिनट है आपके पास, आंसर्स भेजिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग तब से. टाइम वेस्ट यार, ऐसे प्लीज डोंट हैव दिस हैबिट यार. आई डोंट नो व्हाई यू गाइस हैव दिस. चलिए गाइस, पीपल हैव सेंट मी फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला बताइए. 10 सेकंड्स. थर्ड वाला, थर्ड वाले के 10 सेकंड्स है. आई एम काउंटिंग नाउ. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. नहीं आया तो फिर अब आगे और कुछ आएगा भी नहीं आप लोगों को, देखिएगा. सी गाइस, cation is coordination, anion is coordination, cation is coordination, anion is coordination, and you can see this. ये तो हमने एग्जांपल कराया है टेक्स्ट बुक में, अभी कराया नोट में. कोबाल्ट इज हैविंग 6 NH3, यहाँ पे कोबाल्ट के पास CN है, so this is coordination. कोऑर्डिनेशन आइसोमर. ONO और NO2 के बीच में आइसोमर क्या होगा? लिंकेज आइसोमर. नाउ प्लीज सी इन द नेक्स्ट केस. अगर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट केस में, सल्फेट एनायनिक लिगेंड, ब्रोमाइड एनायनिक काउंटर आयन, ब्रोमाइड अंदर, सल्फेट बाहर, आयंस का इधर अंदर बाहर, क्या हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमर. नाउ दिस इज अगेन, देयर आर टू कोऑर्डिनेशन स्टेयर्स, तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमर. एज सिंपल एज दैट. 1 मिनट का भी सवाल नहीं है, 5 मिनट लगा रहे हैं आप लोग. छापी जल्दी छापी.
यार हम ज्यादा टाइम देंगे नहीं आप लोग को, है ना। आप लोग देखिए सवाल लिखने में मत रहिए, सवाल आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। रीड दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू गाइस 10 seconds फॉर रीडिंग दिस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. I hope you have read the question by now. You take 10 more seconds to write, give the answer. Give the answer in 10 seconds. ध्यान से दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है। चलिए, हाँ अब ये वन थिंग इज फॉर श्योर, व्हेन आई एम सेइंग द टॉपिक इज आइसोमर्स, देन सिर्फ आइसोमर्स पढ़ के नहीं होगा कभी। अगर आपको पिछला पुराना नहीं पता ना, एनायनिक लिगेंड क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, इफ यू डोंट नो दीज टर्म्स, देन आइसोमर्स नहीं आएगा, फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत आइसोमरिज्म में हो ही नहीं सकती कभी भी, बिकॉज आइसोमरिज्म इन इटसेल्फ इज अ वेरी, एंड खासतौर से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर इन इटसेल्फ इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। हाँ, बट इट नीड्स सम कंटेक्स्ट। फाइन, 10 more seconds. Correct, very good, Safia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Most of you have got the right answer, that is ionization isomer, है ना। कैसे? Because NO3 is what, it is an anionic ligand, it is going outside, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फेट अंदर जा रहा है, right? So if you see this type of isomerism, that is what it is, ionization isomers. It's ionization isomerism. Right, another question. What about this one? हाँ गाइस, 8 का आंसर बताइए, 8 का पहले बताओ भाई, आंसर बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, हम हमेशा 10-9 करते, हम काउंटर मतलब टाइमर है क्या हम। आंसर दो भाई, आंसर 8 वाले का जल्दी दो, जल्दी दीजिए आंसर। अरे भाई इतना टाइम लगा रहे हैं, ABCD, जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी। यस अलीजा, करेक्ट, वेरी गुड अलीजा। बाकी लोग जल्दी आंसर करें। डेबोरा, मीर एंड सफिया। मीर का आंसर नहीं आया एक भी अभी तक। मीर भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। नो आइडिया, सफिया एंड डेबोरा। सफिया, सफिया टर्न योर माइक ऑन, सफिया टर्न योर माइक ऑन। सफिया टर्न योर माइक ऑन ना, सफिया टर्न योर माइक ऑन। Safia, if you have a problem in turning the mic on, please let me know. Yes, Mir, correct. Safia, if you have any, right. This is ionization isomer. अब वो कैसे, वो आपको खुद जान। No, I'm not asking to write you the name of IUPAC name of the ionization isomer. I just want you to draw the ionization isomer, है ना। क्या होगा, what will be the ionization isomer of this particular complex, है ना। बताइए, what will be the ionization isomers। चलिए कीजिए जरा।
I'm giving you guys this 1 minute for this. हमने कोई सवाल नहीं कराया आप लोग को, आई नो दैट, ठीक है। आई एम जस्ट पुशिंग यू गाइस बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी, बहुत इजी है टॉपिक। आप यू ट्राई टू मेक पैटर्न्स विद वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव सीन बाय नाउ, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमर लिखिए क्या होगा। यस सफिया, वेरी गुड, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, देखिए आपको जब भी आयनाइजेशन आइसोमर बनाने के लिए, अब देखिए जब तक आप बना नहीं पाएंगे तब तक आप इसका, यस मीर करेक्ट, वेरी गुड। अगर आप बना नहीं पाएंगे इसका तो आईपैक नाम तो दूर की बात है, ठीक है। आईपैक नेमिंग में हम नहीं जा रहे हैं अभी, because we have done that in the previous classes. I just want you to show that how to make it. So you identify the anionic ligand. So what is the anionic? This is तो zero ना, तो क्या है? Neutral. Sulfate is not anionic. Sulfate को बाहर भेजिए, क्लोरीन को अंदर लाइए। That's it. Cobalt, NH3, whole 5, SO4, sorry, SO4 अब बाहर जाएगा, क्लोरीन अंदर आएगा। So chlorine will be inside and SO4 will be outside. अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आयनाइजेशन आइसोमर का एक ही एग्जांपल आ रहा है, सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 5 NH3 और 1 SO4 तो है ही सब में, 3 सवाल आ गए। All of these are having 5 NH3 and 1 SO4, फाइन। तो बहुत ही आसान, मतलब यही सवाल आएंगे सर, समझ में आ रही है। अब कोई बोल दे भाई कि इस सवाल और इस सवाल में, मतलब इसमें, दिस क्वेश्चन हियर, दिस, ये वाले सवाल में और इस वाले सवाल में फर्क है, पहले दो सवाल में कोई फर्क ही नहीं है, एवरीथिंग इज सेम इन द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, फाइन। चलिए मूविंग ऑन। अब देखिए एक और सवाल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपके पास आयनाइजेशन आइसोमर था ना, यू हैव अनदर क्वेश्चन जो है लिंकेज आइसोमर का। अब इसमें सी है, द कॉम्प्लेक्स इज इतना, गिव द आईपैक नेम, गिव नहीं, राइट द आईपैक, राइट द, राइट द लिंक, राइट इट्स लिंकेज आइसोमर है ना, राइट, राइट इट्स लिंकेज आइसोमर। अब NO2 का साथी कौन होता है, देखिए नोट्स में NO2 की जगह क्या लगाना है आपको, वो लिखिए जरा। ऑल्सो ट्राई टू हैव फोकस, है ना, कि फोकस कहाँ करना है आपको। यू नो दैट NH3 में फोकस करके कुछ नहीं होने वाला, कोबाल्ट में फोकस करके कुछ नहीं होने वाला, काउंटर आयन में भी फोकस करके कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट लिंकेज आइसोमर, एंड व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट लिंकेज आइसोमर आई हैव टू लुक फॉर एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड इज NO2, और NO2 का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, तो NO2 की जगह वही लिख दीजिए बस, दैट्स इट। एंड देन यू हैव टू राइट द आईपैक नेम, दैट्स अनदर केस, बट स्टिल। हाँ एक और चीज देख लीजिए, सिर्फ आईपैक नेम से काम नहीं चलने वाला, है ना, और ना ही सिर्फ आइसोमर से काम चलने वाला है, दोनों को मिला के भी सवाल आ रहे हैं, फाइन। एंड दिस इज ओनली फॉर 1 मार्क्स, नॉट 2 मार्क्स, इट्स ओनली फॉर 1 मार्क्स। चलिए गाइस जल्दी आंसर लिखिए, गाइस जल्दी आंसर लिखिए, आई एम आल्सो गिविंग यू 1 मोर मिनट, 1 मिनट इस सवाल के लिए भी दे रहे हैं हम, आंसर आना चाहिए। सफिया करेक्ट, वेरी गुड। अलीजा आपको ये पहले वाला समझ में आया, ये वाला अलीजा, यू अंडरस्टूड यस दिस सर। वन? यस सर। ठीक है, तो फिर ये कीजिए, फिर आंसर आना चाहिए, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, जल्दी आप कीजिए आंसर, आंसर आना चाहिए इसमें। सेंडिंग सर। हाँ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मीर, यस वेरी गुड मीर, बहुत सही। ठीक है, कोशिश कीजिए प्लीज आप लोग, है ना गाइस। डेबोरा, अलीजा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, डेबोरा एंड अलीजा।
1 minute इज ओवर गाइस। अलीजा आपका आंसर नहीं आया अभी तक, आपने व्हाट्सएप में भेज दिया क्या? यस सर। अच्छा, ओ Cl2 छूट गया आपको बस। फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, Cl2 भी होगा ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि आने के बावजूद भी आप गलत करके आ रहे हैं, है ना? तब तो बहुत ज्यादा अफसोस होगा। अफसोस क्या होगा आपको, आपको लगेगा मेरा तो आंसर ये वाला सही है, फिर आंसर आपको जब आएगा मार्क्स कम आएंगे तब आपको पता चलेगा ओ मिस्टेक हो गई। ठीक है, दिस विल बी द लिंकेज आइसोमर। डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स इज अ बिट डिफिकल्ट, बट पहले आप समझ लीजिए स्टीरियो आइसोमर्स का सारा खेल। उसके बाद फिर जब सवाल करेंगे देन यू विल से, तो ओके फाइन, वापस से सवाल वैसे ही आ रहे हैं, सब एक ही तरह के सवाल रहेंगे। ठीक है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो केसेस, वट एवर केस हैज बीन देयर इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब वही हम करा लें। वो हम कराते हैं अगर क्रैश कोर्स चल रहा होता, बिकॉज वी आर डूइंग रेगुलर क्लासेस, तो अच्छे से समझेंगे पहले द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, बढ़िया से समझेंगे उसको। उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग रिविजन कर रहे होंगे तब आपको लगेगा अच्छा ठीक है, फ्रॉम दी स्टीरियो आइसोमर्स आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दीज थिंग्स। वो हम अभी भी बता देंगे कहाँ कहाँ फोकस करना है आपको, बट इन जनरल एक बात हमने कही। नाउ राइट द हेडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में सबसे पहला केस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जहां से बहुत सवाल आता है, दैट इज द केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, प्लीज राइट। अब हाँ, यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? हम लोग पढ़ेंगे केस करके। स्क्वायर प्लेनर का सारा केस पढ़ देंगे, फिर टेट्राहेड्रल का केस पढ़ देंगे, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ेंगे। मेक सेंस? ध्यान से देखिएगा जरा। विल राइट नंबर ए पार्ट, फिर नंबर 1 लिख लीजिए आप, दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहली बात आप ये लिखिएगा, इट कैन नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमर as it has plane of symmetry। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? सी, यू हैव मेटल, ठीक है, मेटल, एंड इसमें आप अलग अलग लगा लीजिए, बिल्कुल अलग, A B C D, 4 अलग अलग लिगेंड लगे हुए हैं। तब भी यू नो दैट ऑल ऑफ दिस A B C D, जितने भी आपके पास लिगेंड्स हैं, ऑल ऑफ दीज लिगेंड्स दे लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में है। आप अगर ए से एम जा रहे हैं, एम से सी जा रहे हैं, फिर सी से बी जा रहे हैं, बी से एम जा रहे हैं और डी जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी मतलब हाइट या फिर डेप्थ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज आर इन द सेम प्लेन, एक प्लेन है, मतलब बुक की जैसा प्लेन होता है ना, प्लेन में ही सारे के सारी चीजें। तो वेन एवर यू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, वहां पे कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। इफ इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री देन ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन दोज केसेस। अभी भी अगर आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं दिखाई दी है, देन आई विल ट्राई टू शो यू गाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर प्लेनर 3D। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? यस सर।
Can you see that all of this green, blue, all of these atoms are in one plane? They are all present in a single plane. अगर हम ऐसे चाकू लेके, प्लेन का मतलब क्या है, चाकू लेके जाके ऐसे ना, ऐसे चाकू आगे लेके जाए हम, ये ग्रीन वाला कटेगा, फिर ब्लू वाला कटेगा, फिर ग्रीन वाला कट जाएगा. मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. आप समझ में आया व्हाट इज मीनिंग, Yes, व्हाट इज द sir. मीनिंग ऑफ अ प्लेन? Yes, इफ यू आर sir. गोइंग टू टेक अ नाइफ, तो ये एक एक स्लाइस में सारे के सारे कट जाएंगे, राइट? दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. दैट मींस इट इज सिमेट्रिकल. Now, if it has a plane of symmetry, like any compound, if it has a plane of symmetry, then it will not have any optical isomer. It will not have any optical isomer. ये optical isomer देखने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी. हाँ, एक चीज हमने समझ लिया, स्क्वायर प्लेनर में कभी होगा ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना? स्क्वायर प्लेनर में कभी भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना? एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है, दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर. प्लीज राइट. For geometrical isomers, check ligands at 180 degrees. इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है भी आपको. फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक लिगेंड एट 180 डिग्री. क्या मतलब इसका, समझ में आएगी बात. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. नाउ प्लीज सी. आपके पास सबसे पहला हम लोग केस लेके चलते हैं स्क्वायर प्लेनर के केस में. वी हैव कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सारा केस ले लें क्या? सारा केस ले लें आप लोग? चलिए ठीक है, सारा ही केस ले लेते हैं आप लोग. केस 1 लिखिए, सब कुछ ही दिखा देते हैं. बिल्कुल. मेटल विथ 4 डिफरेंट लिगेंड्स. मेटल विथ हाउ मेनी डिफरेंट लिगेंड्स? बोलो भाई. विथ 4 लिगेंड्स, है ना? और लेकिन चारों के चारों लिगेंड सेम है. 4 लिगेंड है, लेकिन चारों के चारों क्या है, सेम है. Now in this case you can have only one configuration. क्या configuration हो सकती है यहाँ पे? You can have only one configuration, that is A, A, A and A. अब बताइए आप, A के अपोजिट में क्या है? बोलो भाई, A के अपोजिट में क्या है? बोलो A. भाई, A. अब A के अपोजिट में क्या है? A. Once again A, A. अब इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन हो ही नहीं सकता है. A will be always opposite to A. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? So no GI. नो GI पॉसिबल. इसका कोई और पॉसिबल, और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता. नो GI पॉसिबल. धीरे धीरे आएगा, है ना? अभी आप कुछ चीजों को मान के चलो, अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा फीलिंग आ रहा है, तो फिर मान के बस बस देखते चलिए आप. ठीक है, केस 2. केस 2 में क्या होगा? यू विल हैव मेटल, 3 ऑफ द लिगेंड्स आर सेम और एक लिगेंड अलग है. इन दिस केस देखिए जरा, मेटल है आपके पास, ए के अपोजिट में बी रख देते हैं और ए के अपोजिट में ए रख देते हैं. मेक सेंस? प्लीज टेल मी गाइस. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पे बताइए, ए के अपोजिट में क्या है? इस ए के अपोजिट में B. बी. और इस ए के अपोजिट में क्या है? दूसरा E. वाला जो ए है, ए. अच्छा, इसके अपोजिट ना हम कुछ और, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ऐसा कर लें. देखिए जरा, लिखने की जरूरत नहीं है भी, सिर्फ देखिएगा. हम ऐसे कर लें, ए को इधर रख दें, बी को यहां रख दें, ए को यहां रख दें और ए को यहां रख दें. These two structures may look different but are same. How? For geometrical isomers check ligands at 180 degree. इस चीज को याद रखना है. Are these two same or different? कैसे कैसे देखेंगे? 180 डिग्री. ए के अपोजिट में क्या है? बोलो भाई, ए. अरे हाँ यार. और अभी भी ए के अपोजिट में क्या है? बी. यहां भी ए के अपोजिट में बी था, एक ए के अपोजिट में बी था और एक ए के अपोजिट में ए था. हियर ऑल्सो वन ए हैज ए अपोजिट टू द अदर एंड वन ए हैज बी अपोजिट टू इट. ये दोनों ही के दोनों क्या है? सेम है ना भाई. बात समझ में आ गई? ये सोनो प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों ही सेम है. अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये 180 डिग्री वाला क्या कंसेप्ट. ठीक है, ध्यान से देखते रहिए. अभी जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन आते जाएंगे ना, यू विल नॉट बी मेकिंग स्ट्रक्चर्स, वी विल नॉट बी मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ईच एंड एवरी केसेस. वी विल बी यूजिंग अपोजिट 180 डिग्री वाला कंसेप्ट. ठीक है, ध्यान से देखिए. तो यहां पे भी आपके पास GI इज नॉट पॉसिबल. नाउ यू कैन कंक्लूड समथिंग.
ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जगह ए है ना, इन दोनों को एक्सचेंज करके देखिए, बात समझिए, सबसे पहले समझिए, क्या इन दोनों ए को एक्सचेंज करके कुछ फायदा होगा? मतलब ए की जगह अगर हम ए को रख दें, बात क्या बोल रहे हैं हम, अगर हम ए की जगह क्या रखें, आप आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, है ना, आंख बंद देखिए मत, देखिएगा तो कंफ्यूज होगी, आंख बंद कर लीजिए सब। ऑल यू हैव योर आईज क्लोज, यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई। हैव योर आईज क्लोज एंड टेल मी, अगर हम ए की जगह ए रख दें तो कुछ बदलेगा? विल एनीथिंग चेंज इफ आई कीप ए की जगह में ए, तो कुछ बदलेगा क्या? नो सर। नहीं ना, बस सिंपल है, सिंपल है ना। अगर हम ए की जगह ए रखेंगे तो कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है। अच्छा सुन सुन सुन, और अगर हम बी की जगह ए रख दें, क्लोज योर आइज एंड टेल मी, क्लोज योर आइज, है ना, तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा भूल जाएंगे, सिंपल लॉजिक पे आप जाइए। होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन लॉजिक, अगर हम बी की जगह ए रख दें तो बदलनी चाहिए, है ना। अगर हम बी की जगह ए रख रहे हैं, इट शुड बी डिफरेंट ना, ये सुनो। अरे नहीं, नहीं, अगर हम बी की जगह ए रख रहे हैं, सोचो जरा, आप पेन की जगह पेंसिल रख रहे हो तो अलग है या सेम है? बोलो। सर अलग है बट सेम है। अलग है, सेम तभी है जब उसके अपोजिट सेम हो। अगर यहाँ पे जब तक ए है यहाँ पे, तो इन दोनों के एक्सचेंज करने का कोई फायदा नहीं होगा। जिसने समझ ली बात को तब तो बहुत बढ़िया है, आप लोग लॉजिक से चल सकते हैं, जिनने नहीं समझी है वो उनको फिर रखना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस दीज टू वे डिफरेंट, इनको चेंज करके भी कोई फायदा नहीं था। ये सारी चीजें धीरे धीरे काम आएंगी, है ना। दीज आर ऑब्जर्वेशन, जस्ट ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, प्योर लॉजिक, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म, केमिस्ट्री कुछ नहीं हो रहा है, प्योर लॉजिक पे चल रहे हैं हम लोग कि प्लेसमेंट, चीजों को सरियाना, घर का काम। ध्यान दीजिए, केस 3, केस 3, केस 3 में वी हैव एम ए टू बी टू, एम ए टू बी टू। इन दिस केस देखिए, एक बार हमने ए के इसमें ए रखा और एक बार हमने बी के साथ बी रखा, बी के अपोजिट में बी रखा। अब इन दोनों के एक्सचेंज करने का फायदा होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। होगा। होगा, है ना। अब हम करते हैं इनको एक्सचेंज, करते हैं इनको एक्सचेंज, तो क्या मिलेगा हमें? अब ए की जगह क्या आ जाएगा? बी, है ना। ए विल बी अपोजिट टू बी, एंड यहाँ पे बी के अपोजिट क्या आ जाएगा? ए। नाउ प्लीज सी व्हाट वी आर गोइंग टू मेक। यहाँ पे आपके पास दो आइसोमर मिल रहे हैं आपको, मेटल, ए के अपोजिट में बी के अपोजिट में बी, मेटल, ए के अपोजिट में बी और बी के अपोजिट में ए। नाउ व्हेन यू हैव टू सेम लिगेंड्स अपोजिट टू ईच अदर, ना ए के अपोजिट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना, टू सेम लिगेंड्स एट 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांस, दिस इज ट्रांस आइसोमर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। और जब सेम लिगेंड्स 180 पे नहीं होते हैं, इस केस में एम ए टू बी टू के केस में, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। कभी नहीं भूलिएगा आप लोग, सेम साइड अपोजिट साइड कुछ नहीं, 180 डिग्री। If same ligands are present at 180 degree, it is trans. If different ligands are present at 180 degree, it is cis. ठीक है, अब आते हैं अगला केस। अगला केस एम ए टू बी सी, केस 4, एम ए टू बी सी। चलिए बताइए, एक बार ए के अपोजिट में हमने क्या रख दिया? ए, और बचा क्या? व्हाट इज रिमेनिंग? टेल मी। अलीजा बताएंगी, अलीजा जवाब दे रही है, अलीजा ही बताएंगी, और तो कोई साथ ही नहीं दे रहा हमारा। ये सर, अलीजा टेल मी, ये ए के सर अपोजिट में क्या बचा? बी सी। बी के अपोजिट में सी। कर दें एक्सचेंज, यस सर। ए के अपोजिट में क्या रख दें? सी। सी।
और बी के अपोजिट में क्या आ जाएगा? ए। ए आ जाएगा। अब और कुछ हो सकता है क्या? थोड़ा सा सोच के बताइए। नो सर। है ना, ए के अपोजिट में ए भी आ गया, ए के अपोजिट में बी भी आ गया, ए के अपोजिट में सी भी आ गया, और उससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? मेक सेंस? यस सर। है ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेटल, ए के अपोजिट में ए, बी सी, मेटल, ए के अपोजिट में सी और बी के अपोजिट में ए। ठीक है। तो अब इस फॉर्म में भी देख लीजिए आप, सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, तो इसको भी ट्रांस आप बोल सकते हैं। एंड सेम लिगेंड एट 90 डिग्री है, या फिर सेम लिगेंड एट 180 नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन। लिख लिया आप लोगों ने? लिखिए इसको, है ना, लिखने का टाइम दिया है हमने। लिखिए आराम से। लेट मी नो वंस यू डन। अब एक केस बचा हुआ है एम ए बी सी डी का। Raise your hand once you're done. सफिया, डेबोरा एंड मीर, आप लोगों को समझ में जवाब तो आ नहीं रहा है, जिसमें से हमको बड़ा दिक्कत लगता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके फाइन, होपफुली। और खास तौर से ना, आई मीन, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, प्लीज डू रिवाइज दिस, ओके? बिकॉज इस तरीके से 180 डिग्री वाला केस आप लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो जनरली कोई नहीं आपको 180 डिग्री वाला केस लेके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखना सिखाएगा। दे विल आस्क यू टू रिमेंबर द केसेस, ऑल ऑफ द केसेस, है ना? बट हम आपको सिखाएंगे कि बनाना कैसे है, केसेस को बनाना कैसे है। ठीक है। सो इस पे प्लीज रिवाइज कर लिया कीजिएगा। अक्सर क्या होता है, वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, वेदर इट बी IUPAC नॉमेनक्लेचर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑलमोस्ट इक्वलेंट चीज आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी, तो फिर आपको रिवाइज भी हो जाता है। बट द वे आई एम टीचिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ऐसे शायद आप लोग को ना पढ़ाया जाए, जनरली नहीं इस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है। सो प्लीज रिवाइज दिस ऑन योर ओन। हम लास्ट केस चलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, दैट इज MABCD। दिस इज केस नंबर। अच्छा, यहाँ पे आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे आपके पास दो GI हैं, देर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। Here also there are two geometrical isomers possible. Right. Now we are looking at the case number 4, in which we have a metal and all the ligands are different, M, A, B, C, D. Now when all the ligands are different, सबसे पहले देखिए, we will keep A opposite to B. Then what is remaining? Tell me guys. क्या बचा? A के opposite B रख दिया तो और क्या बचा? बोलो भाई। अरे रे रे रे। CD CD। CD। ठीक है। अब बताइए, A के opposite B रख दिया हमने, A के opposite C रख दिया। अब A opposite to C, what is remaining now? और क्या बच रहा है? BD। बी के अपोजिट डी। ए के अपोजिट हमने डी रख दिया। व्हाट्स रिमेनिंग नाउ? BC। BC। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए जरा। नो सर।
नहीं ना। देखिए आप ऐसे, अब देखिए जब सारे पॉसिबिलिटी आपने सच सोच लिया ना, तो उसके बाद ऐसे देखिएगा, ज्वाइन कर दिया, अच्छा बीडी हो चुका है ज्वाइन, ठीक है नहीं कर सकते। फिर सीडी ज्वाइन कर दें, सीडी, अच्छा सीडी यहाँ पे हो चुका है ज्वाइन, ठीक है नहीं कर सकते हैं। और क्या, और ए बी पहले में हो चुका है, ठीक है। सो दिस, इस तरह से आप क्या कीजिएगा, यू विल एग्जॉस्ट ऑल द केसेस, फाइन। नाउ द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दैट यू कैन हैव इन दीज आर, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे आपके पास। Think I will need a bit more space. So here we have A is opposite to B and C is opposite to D. Then A is opposite to C and B is opposite to D. Here A is opposite to D and B is opposite to C. Okay, so these are the different complexes. Okay, so how many? Here we are having 3 geometrical isomers. Write this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Eliza, Deborah, and Sophia. Just waiting for Sophia now. Okay, fine. चलिए ठीक है, आप लोगों ने जब यहाँ तक कर लिया है, देन वी विल लुक एट टेट्राहेड्रल का। अगर आपको लिखना है ना, एक काम कीजिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिख लेते, उसमें कुछ होता ही नहीं, फाइन। तो टेट्राहेड्रल कभी लिख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल हम लोग लास्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट सेकंड। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में प्लीज राइट, इट डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा वैसे ना ये सवाल भी है, इफ यू लुक एट एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट में ही एक सवाल है दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे डोंट शो, tetrahedral complexes they don't show geometrical isomers with monodentate ligands की में अगर कनेक्टेड रहते हैं तो they don't show, ठीक है। then why do they don't show, तो उसमें प्लीज राइट, हमने भी क्या लिखा है, it doesn't show GI because the relative position of atoms, the relative position of atoms, नहीं एक सेकंड, unidentate ligand लिख लीजिए, of ligands attached to central metal atom is same, है ना, is same। और आगे कुछ with respect to each other, with respect to each other, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलते हैं। इट शोज ऑप्टिकल आइसोमर only when all 4 ligands are different,
ठीक है, so you have metal, you have A, B, C and D, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने हैलोल्किन हैलोरीन में पढ़ा है ना, ऑप्टिकल आइसोमर, वैसे ही होता है बिल्कुल। यहाँ पे इट विल बी अ मिरर इमेज। इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव 4 डिफरेंट लिगेंड्स, है ना। इसको बस एक बार अपोजिट कर देते हैं, रोटेट हॉरिजॉन्टल, है ना। देन आई नीड टू जस्ट राइट दिस वंस अगेन। दिस विल बी ए, दिस विल बी डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, ठीक है। सो दिस एम ए बी सी डी हैज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना। दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, एंड दीज आर AKA enantiomer, enantiomers। और ये दोनों ये क्या है, वन enantiomeric पेयर है। दिस इज enantiomeric पेयर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वाई टाइप का सवाल आ सकता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो GI वाई बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम आर सेम। मतलब क्या है इसका, मतलब दो, मतलब कितना भी आप ले लेना, ए से बी तक कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इट इज 109.5 डिग्री। ए से सी तक कितना है, तो 109.5 डिग्रीज, ठीक है। तो देर इज, मतलब ए से लेके आप बी जाइए, चाहे सी जाइए, चाहे डी जाइए, या बी से डी जाइए, या डी से सी जाइए, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, एट 109.5 डिग्रीज ओनली, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप स्क्वायर प्लेनर के केस में देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते क्यों है, इट इज बिकॉज अगर हम ए से डी तक जाएं देन द एंगल इज 90 डिग्री, बट अगर हम ए से सी तक जाएंगे ना देन द एंगल इज 180 डिग्री। सो जहां जहां पे दो किस्म के बॉन्ड एंगल्स आते हैं, वहां वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, और जहां पे दो किस्म के बॉन्ड एंगल्स नहीं होते हैं, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत आगे की चीज पढ़ा दी हमने आप लोगों को, आप लोगों को ये सारी चीज जानने की जरूरत है नहीं। आप बस ये जानिए कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वी डोंट हैव एनी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। दोनों का हमने रीजन दिखाते हैं, एज इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरे केस में हमने क्या लिखा दिया यहाँ पे, बिकॉज द relative position of ligands attached to central metal atom is same with respect to each other, fine। चलिए, I hope you will write this down quickly। अच्छा, लिसा ने लिख लिया, waiting for Deborah and Safia, please write this down guys। Waiting for Deborah and Safia, write this down and raise your hand once you're done। Deborah and Safia, still waiting for you guys।